Shalom. We bring greetings in Jesus' name. शलोम, हम यीशु के नाम से अभिवादन को लाते हैं। 15 days back, 15 दिन पहले somebody came to me and told me और कोई मेरे पास आए और कहने लगे in their company, उनके कंपनी ने they have sacked 500 people. 500 लोगों को निकाल दिया है। A month back, एक महीने पहले somebody else gave me a prayer request. और किसी और ने मुझे प्रार्थना का निवेदन दिया। Pastor, pray पासवान प्रार्थना कीजिएगा that all the members of our household may receive their salaries. कि हमारे घर के जो काम करने वाले सदस्य हैं उनको तनख्वाह मिल जाए। Maybe 2 months back, 2 महीने पहले somebody called and told us और किसी ने बुलाकर ये कहा they are given a 40% cut on the salary. उनके तनख्वाह में 40% का कटौती हो गया My है। brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहन, this pandemic has put many of us into deep distress. ये महामारी ने कहीं ना कहीं तो हमको सता कर रखा है। Somewhere or the other that we all are experiencing a kind of threat in our spirit. कहीं ना कहीं जो है हमारी आत्मा में हम डरे हुए हैं We are not what we were. और जैसे हम थे वैसे नहीं। There is lack of confidence in each one of us. आज जो है वो और आत्मविश्वास नहीं है। Why is it so? ऐसा क्यों है? Because we are not certain about anything. क्योंकि हम किसी भी बात को लेकर निश्चय ही कह नहीं सकते हैं। Because we are not certain, क्योंकि हम निश्चय ही कह नहीं सकते and हैं। somewhere or the other it's hurting us. कहीं ना कहीं जो है उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा If है। you are somebody who's experiencing what many are experiencing today, अगर आप ऐसे जन हैं जो उन चीजों का अनुभव कर रहे हैं जो बहुत सारे लोग कर रहे you हैं। need to adopt 4 principles that the early church adopted. देखिए, आपको ये 4 सिद्धांतों को अपना लेना है जो शुरुआत की कलीसिया या आदि की कलीसिया ने अपनाया Even था। as you adopt these principles, जैसे आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं you should be able to overcome every insecurity, uncertainty in the name of तो Jesus आप ये Christ. सारी जो परेशानियां हैं, ये जो सारी चीजें जो हो रही हैं उस पर आप हावी हो पाएंगे यीशु मसीह के नाम I से। want us to open our Bibles to Acts chapter 4. पवित्र शास्त्र को आइए खोलेंगे, प्रेरितों की किताब 4था अध्याय We're going to read from verse 29 to 31. 29 से 31 तक पढ़ेंगे। Okay, it says now here in verse 29, now Lord, look on their threats and grant to your servants that with all boldness they may speak your word. Verse 30, by stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. Verse 31, and when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they all were filled with the Holy Spirit, and they spoke the word with great boldness. अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ पे वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। My brothers and my sisters, let me just give you a brief background to this place. इसके बैकग्राउंड को मैं जल्द से आपको बताता हूँ। These covered disciples of Jesus Christ, ये डरपोक यीशु मसीह के शिष्य when they waited upon the Holy Spirit for 10 days after the ascension of Jesus यीशु Christ, मसीह के स्वर्ग आरोहण के बाद 10 दिन जो वो पवित्र आत्मा के लिए रुके हुए थे and on the day of Pentecost, और पेंटेकोस्ट के दिन received the overflowing measure of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की भरपूरिता ने जब उनको भर दिया, When they received this baptism, spirit baptism, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ उनका, Peter preached the first message. पतरस ने पहले संदेश को That सुनाया। first message won 3,000 souls for the kingdom वो of God. पहले संदेश ने 3000 लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए जीत लिया। Next day he preached another message. अगले दिन जो है और एक संदेश को During सुनाया। another occasion that he preached another message. और अगले दिन जो है संदर्भ अलग था लेकिन उन्होंने संदेश को सुनाया। 5,000 people accepted Jesus उल्लेख है Christ. 5000 लोगों ने यीशु मसीह का स्वीकार And the किया। third day again he preached another message. तीसरे दिन उन्होंने फिर संदेश को सुनाया। The word of God says that multitudes were added to the kingdom of God. वचन में लिखा हुआ है कि कोई गिनती नहीं थी, अनगिनत लोग यीशु के राज्य में प्रवेश करने When the लगे। Jewish Sanhedrin members
and the authorities saw all that was happening, जब यहूदी सिंहाद्रिन के सदस्य लोग और अधिकारी लोग उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, they wondered among themselves and called Peter and John, और वो सोच में पड़ गए और यूहन्ना और पतरस को बुला लिया and उन्होंने they threatened them. और उनको धमकी दी They उन्होंने, said, "Stop speaking in this name. और धमकी देकर कहा कि इस नाम से प्रचार करना बंद कर We दो। don't want to see you assemble people and speak about this man called Jesus." हम नहीं चाहते हैं कि तुम लोगों को इकट्ठा कर कर ये यीशु नामक पुरुष का प्रचार करो। And after that, the disciples came back. और उसके बाद शिष्य लोग वापस आए। Verse 29 to 31 is the prayer that they make to the Lord Almighty. और देखिए 29 से लेकर 31 तक यहाँ पे इकट्ठा होकर वो प्रार्थना कर रहे हैं। Here you can find 4 principles that they adopted when they felt threatened the way that you and I are feeling और threatened. देखिए 4 सिद्धांतों को देखिए यहाँ पे उन्होंने अपनाया जब उनको धमकी दी गई, और जिस रीति से हमको जो है आज लग रहा है उस रीति से। Even they too were in the same insecure place. वे भी असुरक्षित महसूस कर रहे थे, They were also very uncertain about everything. और क्या होगा क्या नहीं होगा समझ नहीं आ रहा था। What did they do? उन्होंने क्या किया? Verse 29 tells us gives us the first principle. और पहला सिद्धांत 29वें वाक्य में है, Now, Lord, look on their threats and grant to your servants with great boldness they may speak your word. अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से हम सुनाए। Number one thing that they decided to involve God in the business of God. और पहली बात जो है उन्होंने ये किया कि उन्होंने परमेश्वर को शामिल किया परमेश्वर के व्यवसाय। Let me tell you, my brothers and my मैं आपसे sisters, कहूं भाइयों बहनों, being a child of God, every business of you is His business. और देखिए परमेश्वर का क्योंकि आप संतान है, बच्चा है, तो आपका हर एक व्यवसाय उनका व्यवसाय है। He is waiting to see how you react. और वो ये देख रहे हैं कि आपकी प्रतिक्रिया कैसी He है, is watching you. वो आपको देख रहे हैं। If you are ready to involve Him, अगर आप उनको शामिल करते हैं He is ready to get involved and give a solution to all that you're facing. तो वो शामिल होने के लिए तैयार है, और आप जिस किसी चीज का सामना कर रहे हैं उसका हल देने के लिए वो Most तैयार of है। us are struggling and striving in our own strength. हम में से अधिकांश लोग अपने ही शक्ति में संघर्ष कर रहे हैं। We're using our intellect, our ability. हम अपने ही ज्ञान का या बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, हमारी क्षमता We का are, उपयोग कर we रहे are हैं। checking our reach. हम जो है ये देख रहे हैं कि हमारी पहुंच जो है कहां तक है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, your reach can never exceed the reach of God. आपकी पहुंच जो है वो परमेश्वर की पहुंच से लंबा नहीं है। And God's power definitely supersedes your power. परमेश्वर का सामर्थ्य जो है उसकी तुलना ही नहीं कर सकते हैं। Involve Him आप उनको जो है शामिल in कीजिएगा। everything that you ever go through. जो भी आप जिन चीजों से गुजर रहे हैं उन सारी चीजों में आप उनको जो है इन्वॉल्व कीजिएगा, You उनको लाइएगा। will see things turn to your favor. आप देखेंगे कि सारी चीजें जो है आपके हित में बदलने लगेगी। Number 2, दूसरी बात, the disciples prayed for greater faith. और शिष्य लोगों ने प्रार्थना की कि परमेश्वर हमारे विश्वास की मात्रा को तू बढ़ा। He says that, it says here that grant your servants that with all boldness they may speak your word. और वो कहते हैं कि परमेश्वर अपने सेवक जनों को तो वो साहस दे कि हियाव से तेरे वचन को हम बांट पाए। We all have faith. We thank God for that. हम सबों में जो है विश्वास है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं विश्वास के But लिए। a certain situation and circumstances calls for greater faith. लेकिन कुछ ऐसी स्थिति परिस्थितियां होती हैं जहां पे महान विश्वास को प्रकट करना होता है। As Shadrach, Meshach and Abednego needed the greater faith to overcome the fiery furnace. और देखिए शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को महान विश्वास की जरूरत थी ताकि वो उस धधकती हुई भट्टी से बाहर निकल कर My आए। brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, you better cry just the way the disciples cried and ask for greater faith. और जिस रीति से शिष्य लोग जो है उन्होंने प्रार्थना की और कहा कि परमेश्वर हमको ज्यादा विश्वास दे। Let's cry to God. हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना Let's say, करेंगे, fill our heart with greater faith हम रोएंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु हमारे हृदयों को तू महान विश्वास से भर दे, so that we may
call upon you, look unto you confidently to receive all that you promised. ताकि हम विश्वास के साथ जो है आपकी ओर देख पाए और वो सारे वादों को हम ले पाए जो वादे आपने हमारे से Third principle that I want us to look at this morning. तीसरा सिद्धांत हम चाहते हैं कि आप देखें इस सवेरे के वक्त Expect God to intervene in your situation, circumstance. अपेक्षा कीजिएगा कि परमेश्वर आपकी स्थिति परिस्थिति में दखल अंदाजी करेंगे। Look at verse 10, verse 30 says what? 30वां वाक्य देखिए क्या कहता It है। says, by stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। My brothers and my sisters, they understood the power of signs and miracles. और देखिए शिष्य लोग समझे थे कि आश्चर्यजनक काम और चिन्ह का क्या सामर्थ्य है। You know, without the signs and the wonders and the healings, it was very difficult for them to preach the word. They understood, identified it. और चिन्ह और आश्चर्यजनक काम और चंगाई के बिना जो है वचन का प्रचार करना कठिन है वे समझ गए थे। And that is why they cried out to God. और इसीलिए उन्होंने प्रार्थना की। They didn't want to become famous, they wanted to make God famous. That's why they cried out to God. वे प्रसिद्ध नहीं होना चाहते थे, वे चाहते थे कि यीशु मसीह को वो प्रसिद्ध करे और इसीलिए वो प्रार्थना करने लगे। Today our intentions are different. आज जो हमारा सोच है वो अलग है। Maybe because of that, you know, signs and wonders are kind of reducing. उसके वजह से हो सकता है कि चिन्ह और आश्चर्यजनक काम जो है आज उस मात्रा में दिखाई नहीं पड़ते। My brothers and my sisters, let me tell you, the same God who worked for them is ready to work for you. और देखिए मेरे भाइयों में बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो परमेश्वर जो उनके लिए उन्होंने काम किया, वो परमेश्वर हमारे लिए भी काम करने के लिए He is तैयार the है। same yesterday, today and forevermore. बीते हुए दिनों में और आज और आने वाले दिनों में वो वैसे के वैसे ही है। Even as you cry for His intervention in your circumstance or situation, और जैसे आप जो है प्रार्थना करते हैं और आप उनसे कहते हैं कि आपकी स्थिति परिस्थिति में वो दखल अंदाजी करे, you can expect God to intervene and solve that problem in the name of और Jesus. आप अपेक्षा कर सकते हैं कि परमेश्वर दखल अंदाजी करेंगे और उसका हल निश्चय देंगे आपको यीशु मसीह के He नाम से। can perform that great miracle to His glory. और वो उस आश्चर्यजनक काम को कर सकते हैं उनकी महिमा के लिए। Number 4, चौथी बात, very, very important. महत्वपूर्ण बात, Verse 31 speaks about it. 31वें वाक्य में When लिखा they हुआ है, made this prayer, जब उन्होंने प्रार्थना किया and when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, that kind of an infilling is needed during this pandemic times. और देखिए इस महामारी के समय उस तरह का पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रीति से भर जाना जरूरी है। That kind of an infilling is needed if you want to overcome the threats that the enemy is bringing upon us. और देखिए उस तरह की परिपूर्णता पवित्र आत्मा में जरूरी है क्योंकि शत्रु जो है वो धमकियां जो दे रहा है हमको। When you are filled with the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं you will stand in confidence. तो हम जो है विश्वास के साथ में खड़े हो A सकते हैं। strange boldness comes inside you. एक साहस हमारे अंदर आ जाता है। You will be able to overcome every threats that the enemy ever tried to send upon तो you. जो भी धमकियां शत्रु देने का प्रयास करता है उस पर हम हावी हो जाते Look at this, what happened in this place. आप देखिएगा इस स्थान में क्या हुआ। The Holy Spirit filled them, पवित्र आत्मा ने उनको भर दिया and the Word of God says that the place where they had assembled shook. और वहां पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जहां पे जिस स्थान में वे इकट्ठा हुए थे वो जगह हिल गई। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, that can happen even today. आज भी ये हो सकता The है Lord is ready to render that same thing today, और परमेश्वर वो बात को आज भी कर सकते हैं provided that you are ready to break that prayer. अगर आप ऐसी प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। Don't get threatened. आप जो है धमकियों से डर Don't नहीं, live in fear. आप भय में मत जीना, Overcome every worry. आप हर एक चिंता पर हावी हो जाना। God is with you. परमेश्वर आपकी ओर से है, आपके God साथ is है just waiting for you to make that और prayer. परमेश्वर रुके हुए हैं कि आप वो प्रार्थना को बोले करे। He will render greater miracles for His glory in the name of Jesus. परमेश्वर आश्चर्यजनक कामों को करेंगे उनकी महिमा के लिए यीशु मसीह के नाम से। If you believe this, अगर आप विश्वास रखते I हैं want you to go
into the week with these things. आप जो है इस हफ्ते में इन चीजों को लेकर जाइएगा। Even as you do that, जैसे आप ऐसा करते हैं, God will help you in everything that you ever lay your hand in the name of Jesus. परमेश्वर आपकी मदद करेंगे उन सारी चीजों पर जो आप हाथ रखेंगे, परमेश्वर उनमें उसमें आपके साथ रहेंगे। You will be more confident. आप और ज्यादा विश्वास से भरे You हुए will be होंगे, more bold आप और ज्यादा साहसी होंगे, because God is with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। Hallelujah. हालेलुया। Smile मुस्कुराइए and go into the week और सप्ताह में जाइएगा to His glory. उनकी महिमा के लिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे।